Okay, so again I create another project, web application. Okay, file, new project. Then web application. Suppose I define here student next, then finish. So here I just create a HTML form. I have to create a HTML form. So where it contain like student ID, okay, let it be login ID and password. Okay, so it is better. Here I show you the insert, update and delete command. Login ID, password, login ID text T1, password is password T2, and input type equals submit. Okay, now what to do? You have to move, right click on the student, go to the property. So now you add here library, add library, Java DB driver. Okay, then next you move to the service, this one service. So in the service you click on the database. So if your database is connected, then it is showing you start server or end server. So right click, start server.
The server is end here, so I have to start here. Then right click. Then here I create another database. Right click, create database. Database name my login. Username, suppose root. Password is root. Confirm password, root. Okay. So I have created database. Then I move to the project. Okay. So here already I create a HTML page, and my information will store where? In a servlet login page. Okay. So first I what to do? So I go to the source package, new servlet. I have to pass here login, next, add information to deployment descriptor, finish. So my servlet page is created. So next is what? I create a one class file for connectivity. Okay, it is for the connection. Okay, so right click, new Java class. ओके, तो यहाँ पर मुझे क्या करना होगा ना, जो कनेक्टिविटी का जो कोडिंग है वो सेपरेट में एक क्लास में डाल दूंगा. इसमें से हमको हेल्प क्या होगा ना, जो कनेक्शन जिस पेज में चाहिए, तो मुझे बार बार कनेक्टिविटी का कोडिंग लिखना नहीं पड़ेगा. तो यहाँ पर मैं एक पास कर दिया डाटा कनेक्ट. ओके, नाउ मुझे क्या करना है ना, यहाँ पर ये जो क्लास जो मैंने ऐड किया, पहले मुझे यहाँ पर एक इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा. इंपोर्ट java.sql.star. तो यहाँ पर मैं sql.star डिफाइन कर दिया. उसके बाद मुझे क्या करना है ना, एक क्लास डिफाइन करना है कनेक्शन कॉन इक्वल्स टू नॉल. ओके, सो ये जो ड्राइवर का जो नेम है, ये पूरा पाथ जो है, ये कहाँ से मैं रिट्राइव करूंगा? ये मुझे रिट्राइव करना है सर्विसेज के अंदर जाकर. ये वाला है हमारा माई लॉगिन. ओके, यहाँ से मैं रिट्राइव करेंगे. इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, कनेक्ट मैंने किया.
और यहाँ पर मैं जो रूट है यहाँ पर मैं एक टेबल बना देता हूँ। टेबल, राइट क्लिक, क्रिएट टेबल, लॉगिन। LID, size is 6, add column, password, I take it varchar, suppose 6. So here I define as a primary key. LID is a primary key. Okay. So my table is created here. Now I just right click here, go to the property and just copy this file. Copy this one. Okay. So I paste where? I paste this position. Again I just check my login. Then create true. Your username is root. Password is root. Okay. Then here I pass. मैं सही जा रहा हूँ ना? Class dot for name. यहाँ पर मैं अपना ड्राइवर का नाम दूंगा। तो ड्राइवर क्या है? मैं राइट क्लिक, प्रॉपर्टी, तो हमारा ड्राइवर है इधर। देखो कहाँ पर मिलेगा? जो ड्राइवर क्लास के अंदर मिलेगा। तो क्लिक करना है, ये वाला कॉपी कर देना है। बस यहाँ पर आप ड्राइवर का नाम डाल दो, क्लास डॉट फॉर नेम। ठीक है, लिखा है। यहाँ पर कैच में मैं डाल देता हूँ एक्सेप्शन। ये अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो ये आपको दिखाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट println ये। Okay, so here my connectivity is now perform, मीन्स यहाँ तक मेरा ये वाला मेरा कनेक्टिविटी मैंने डाल दिया। तो अभी मुझे क्या करना है, मैं मेरा कोड में चला जाता हूँ। ये पूरा इंसर्टिंग का कोड मैं आपको देता हूँ। ये लॉगिन पेज में चला जाएगा। लॉगिन पेज में मुझे क्या करना है ना, मुझे डू पोस्ट मेथड के अंदर कोडिंग लिखना है। तो मुझे डिफाइन करना है स्ट्रिंग आईडी इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट
गेट पैरामीटर यहाँ पर हो जाएगा T1। मैं T1 डिफाइन किया था। T1 किसका नाम है? मैं आपका जो यहाँ पर फॉर्म का नाम दिया हूँ T1। फिर स्ट्रिंग पासवर्ड इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर T2। तो मेरा इंफॉर्मेशन इधर आ गया। अभी मुझे क्या करना है ना, इंसर्टिंग का कोडिंग लिखना है। तो पहले मैं ये जो क्लास है ऊपर चला जाऊंगा, यहाँ पर एक क्लास डिफाइन करूंगा। कौन सा क्लास ना, जो कनेक्शन का जो क्लास है यहाँ पर मैं डिफाइन कर दूंगा। अच्छा, ये डिफाइन करने से पहले हमको यहाँ पर एक, यहाँ पर भी हमको डिफाइन करना पड़ेगा इंपोर्ट जावा डॉट एसक्यूएल डॉट स्टार। ये डिफाइन कर दिया। तो मेरा क्लास का नाम क्या है? डाटा कनेक्ट है। तो क्लास का नाम है डाटा कनेक्ट, ये वाला जो क्लास जहाँ पर हम कनेक्टिविटी डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर यूज करेंगे डाटा कनेक्ट। डाटा कनेक्ट के अंदर मेरा फंक्शन है कॉन डीबी, मतलब डाटाबेस का कनेक्शन में यहाँ पर डाल दिया। तो मेरा कनेक्शन, डाटाबेस का कनेक्शन इस पेज में आ गया। तो अभी मैं यहाँ पर मेरा इंसर्टिंग का कोडिंग लिखूंगा। पहले यहाँ पर एक डाटा को डिस्प्ले करने के लिए ये वाला डिफाइन किया जाएगा प्रिंट राइटर, क्योंकि डाटा स्टोर हुआ है कि नहीं आपको HTML पेज में डिस्प्ले करने के लिए प्रिंट राइटर यहाँ पर यूज कर रहे हैं। उसके बाद हम चलेंगे कनेक्टिविटी का कोड लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो, स्ट्रिंग आईडी रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर T1 स्ट्रिंग पासवर्ड T2। तो ऊपर हम जो प्रिपेयर स्टेटमेंट, यहाँ पर प्रिपेयर स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बनाए हैं PS नॉल, जो डाटा इंसर्ट करने के लिए लिखा जाता है। तो प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट कनेक्शन कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट इंसर्ट इनटू, कौन सा टेबल में हमको डालना है ना, लॉगिन टेबल। पासवर्ड क्या है ना, LIDN पासवर्ड, जो जो कॉलम का नाम यहाँ पर हमने पास किया। हाँ हाँ। तो लॉगिन LIDN पासवर्ड दो वैल्यू है। तो दो वैल्यू के लिए यहाँ पर दो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क एंड क्वेश्चन मार्क, मतलब रन टाइम हम पैरामीटर लेंगे। तो पहला पैरामीटर आईडी है, PS डॉट सेट स्ट्रिंग आईडी, देन PS डॉट सेट स्ट्रिंग पासवर्ड। तो नेक्स्ट है पासवर्ड। तो आपका जो SQL स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए INT काउंट PS डॉट एग्जीक्यूट अपडेट, यहाँ पर एग्जीक्यूट हुआ। अगर आपका एग्जीक्यूशन होता है तो आपका वैल्यू एक से ज़्यादा रहेगा। इफ काउंट इज ग्रेटर देन 0 तो आपको दिखाएगा डेटा सेव सक्सेसफुल। अगर आपका डाटा करेक्ट सेव नहीं हुआ है तो डाटा नॉट सेव्ड आपको दिखाएगा। अच्छा, अभी रन करते हैं। हम्म हम्म।
एक फ्रेश प्रोजेक्ट बनाया। तो बार आ गया। लॉगिन आईडी 8001 पासवर्ड। फिर से दिखा रहा है इंसर्ट का स्पेलिंग गलत है। इंसर्ट, यहाँ पर मैं स्पेलिंग गलत लिखा हूँ। फिर से रन करता हूँ। S001 पासवर्ड हो गया PSSWORD। ये क्या है? अच्छा, पासवर्ड का लिंक मैंने छोटा दे दिया, ये भी गलत हुआ। एक्सेप्शन आया, मैं थोड़ा कम वाला देता हूँ। हाँ, एक छोटा वाला दे देते हैं। S001, क्योंकि पासवर्ड का लिंक मैंने 6 डिफाइन किया था। तो PASS पास, डाटा सेव सक्सेसफुली। अभी हम चेक करेंगे मेरा डाटा सही में स्टोर हुआ है कि नहीं। तो डेटा को देखने के लिए हम कहाँ पर जाएंगे ना, सर्विसेज के पास जाएंगे, यहाँ पर लॉगिन के पास जाएंगे, राइट क्लिक, व्यू डाटा। व्यू डाटा मानने से देखो, जो मैं यूजर इंटरफेस में मैं जो डाटा दिया, यहाँ पर मेरा डेटा स्टोर हो गया। ये सिंपल प्रोग्राम वेरी यूजिंग, मतलब एक ही कनेक्टिविटी के अंदर हम करेंगे। अच्छा, मैं और एक दो वैल्यू इंसर्ट कर लेता हूँ। ये हो गया S002 पासवर्ड। पासवर्ड सपोज छः के अंदर देना है, 1 2 3 4 5 6। और एक हो गया बैक S003 6 5 4 3 2 1 डाटा सेट। तो 3 तो वैल्यू मैंने स्टोर कर दिया। अभी चेक कर लेते हैं इधर, एग्जीक्यूट। ओके, तो यहाँ पर मेरा 3 तो वैल्यू स्टोर हो गए। अभी मैं प्रोजेक्ट में लौटता हूँ। यहाँ पर लॉगिन डॉट जावा है। सपोज मुझे इंफॉर्मेशन को देखना है यूजर इंटरफेस, तो राइट क्लिक, न्यू, जावा। ओ, पहले मुझे यहाँ पर एक चीज करना पड़ेगा, वेब पेज न्यू। देखिए, सर्च, सर्च के लिए एक बटन मैंने यहाँ पर डाला। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ HTML का फॉर्म, वही चीज़ है। फॉर्म एक्शन में डाल देता हूँ
सर्च मेथड पोस्ट, सिर्फ लॉगिन आईडी को लेकर मैं सर्च करूंगा। पासवर्ड मतलब ये रो हटा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इनपुट टाइप सबमिट, वैल्यू हो गया सर्च, और पेज देख लेते हैं पेज कैसे दिखाई देता है। ये वाला है, तो यहाँ पर क्लिक करने पर मेरा जो जो पासवर्ड है वो आपको दिखाएगा। इसलिए मैं एक क्लास डिफाइन करता हूँ, जावा सर्वलेट सर्च नेक्स्ट। तो सर्च में फिर यहाँ पर ये ऊपर जाकर मैं डिफाइन करूँगा इंपोर्ट जावा डॉट एसक्यूएल डॉट स्टार। तो यहाँ पर भी मैं कनेक्शन का ऑब्जेक्ट, कनेक्शन का पूरा ये नहीं चाहिए मुझे, बस ये 2 लाइन डिफाइन करना है। तो यहाँ पर मुझे स्टेटमेंट चाहिए, HTML, ये भी नहीं चाहिए, मैं सिर्फ कनेक्शन डाल देता हूँ। तो डू पोस्ट मेथड में मुझे सिर्फ एक चीज रिट्राइव करना है, स्ट्रिंग आईडी इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर T1। आईडी को लेकर मैं सर्च करूंगा। तो यहाँ पर मैं ट्राई कैच डाल दिया। यहाँ पर मुझे पास करना होगा, ये सब मुझे हटा देना। यहाँ पर मैं डिफाइन करूंगा स्टेटमेंट HTMT कॉन डॉट रीड स्टेटमेंट, result set rs equals to HTMT dot execute query, then select star from
टेबल का नाम हो गया लॉगिन। वो यार लॉगिन आईडी इक्वल्स टू सिंगल कोट के अंदर डबल कोट के अंदर प्लस सिंबल के बाद यहाँ पर आईडी। सिंगल कोट के अंदर डबल कोट प्लस सिंबल देन आईडी। तो आईडी के बेसिस में मैं सर्च करूँगा। तो वाइल rs डॉट नेक्स्ट, मतलब जब तक rs ऑब्जेक्ट में मेरा डाटा है तब तक मेरा वैल्यू रिट्राइव करता रहेगा। स्ट्रिंग id इक्वल्स टू id1 इक्वल्स टू rs डॉट गेट स्ट्रिंग। ये जो गेट स्ट्रिंग के अंदर मेरा कॉलम का नाम पास होगा, जिस कॉलम का वैल्यू आपको चाहिए। स्ट्रिंग pas इक्वल्स टू rs डॉट गेट स्ट्रिंग पासवर्ड। यह है कॉलम का नेम, एसक्यूएल कॉलम का नेम। तो हम देख लेते हैं। पास है, ये LID है। तो अभी हम इसको डिस्प्ले करेंगे। आउट डॉट तो यहाँ पर हम यूज कर लेते हैं ट्रिम यूज करने पर क्या होगा, अगर कोई वाइट स्पेस है वो रिमूव हो जाएगा। आउट डॉट println your id is id1 out dot your password is pass। इतना चीज हमको डिस्प्ले करना होगा। तो मैं प्रोजेक्ट में चला जाता हूँ। सर पास भरिएबल टा डिफाइन हेनी बोधे एरर देखौछि पास भरिएबल तळे এটা pas सॉरी is pas। S003 your id is S003 and password is 654321। ये आपका वैल्यू सर्च कर लिया। सिमिलर वे after searching then you can अपडेट द इंफॉर्मेशन। तो अपडेट से पहले आपको डिलीट दिखा देता हूँ। JSP
डिलीट। सर्च का जो डिजाइन है डिलीट का वही रहेगा। बटन का नाम मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ डिलीट। फॉर्म एक्शन हो जाएगा डिलीट। पैकेज न्यू, सर्वलेट, डिलीट। जेड हो गया। जैसे जैसे सर्च का कोडिंग था, कनेक्शन वही चीज मैं यहाँ पर डिफाइन करूंगा। तो पहले आप यहाँ पर import java.sql.start डिफाइन कर दो, ये काम खत्म हो जाए। फिर यहाँ पर जो आपका था इंसर्टिंग का कोडिंग, ये डू पोस्ट मेथड के अंदर डाल दो। और यहाँ पर इंडेक्स में ये वाला भी चाहिए। ये हो गया। बस यहाँ पर हमको चेंज करना है, एक ही डाटा देना है। string id equals to request dot